Yes, good morning students. Yesterday we have discussed about the potential difference and before that we have discussed about the current. In which we have discussed that current is equal to Q upon में T. जिसे हमने बताया था Q is the amount of the charge passed from one point to the other point in a given time. That will be equal to your current. And yesterday we have discussed about the potential difference. That will be the amount of the work done to move coulomb of the charge from one place to the other place. That is known as your potential difference. So is there any relationship between the I and V? What happened? यस, तो हमने दो चीजें डिस्कस की अभी तक. करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी मीन्स अमाउंट ऑफ द चार्ज मूविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम. दैट विल बी नोन एज योर करंट, जिसकी यूनिट हमने बताई थी एम्पियर. कल हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. दैट विल बी वी. So what is the relationship? Is there any relationship between I and V? Means relationship between I and V. Is there any relationship? Can we calculate that there is a relationship between I and V? So to explain or to verify the relationship between the current and the potential difference, there is an activity. So to explain that activity, first of all, what we needed? We needed 4 cells of 1.5 volt battery each. जो सेल की वोल्टेज है वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 1.5 वोल्ट होनी चाहिए. 1 ammeter to check whether the current is flowing or not. Second, third हमें चाहिए एक voltmeter to show that what is the potential difference between the two terminals. Then there will be one key and connecting wire. And last is your resistance. Someone asked me what is the resistance. Resistance means resist, to resist the flow of current. फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? आपका रेजिस्टेंस कहलाता है. इन दिस एक्टिविटी वी विल कीप द रेजिस्टेंस कांस्टेंट. यानी हमने मान लो एक निक्रोम की वायर ले ली. जो इसमें लेनी है हमें निक्रोम वायर ऑफ अराउंड 0.5 मीटर. आपको 0.5 मीटर की क्या लेनी है? निक्रोम वायर लेना है. तो व्हाट इज निक्रोम वायर? That nichrome wire is an alloy. Alloy means when two or more metals and non-metals combine together to give a homogeneous mixture, so that the properties will change and that will be improved. That is known as your alloy. So nichrome is an alloy of, जैसे नाम से पता चला, nickel and chromium. So one alloy is your nickel. Second one will be your chromium. Third will be your manganese and fourth one will be your iron. ये दो आपके larger quantity के अंदर present होंगे, but manganese and the iron will be present in the lesser quantity. So it is your nichrome wire. So हमें क्या क्या चाहिए इसके अंदर? एक आपको 4 nichrome wire चाहिए 0.5 मीटर की. 4 सेल चाहिए. ammeter चाहिए to check the current कि how much amount of the current is flowing through the circuit. फोर्थ वन मुझे क्या चाहिए? एक वोल्टामीटर चाहिए टू चेक द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम, सो दैट वी कैन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड वी. इसमें की चाहिए ताकि हम ये बता सकें कि हम स्विच ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर रहे हैं. इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर चाहिए. और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ही हमने क्या बोला है यहाँ पे? निक्रोम वायर. ओके, so these are the main things which are used to make an electric circuit to verify the relationship between I and V. How they will be joined and how can we calculate the relationship between them? Okay. So first we will draw the electric circuit diagram to
calculate the relationship between the potential difference and your current. So how we will make the diagram? First of all, you have to take, these are the points X and Y. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस रख सकते हैं. हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया जिसको मैंने नाम दिया है निक्रोम वाई. तो ये मेरी किसकी वाई होगी, निक्रोम वाई. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट the potential difference will be calculated between the two terminals, and in that case the voltmeter will be always connected in the parallel combination. यानी इन दोनों पॉइंट के बीच के अंदर मुझे वोल्टेज निकालनी है. तो आई विल ऑलवेज ज्वाइन दिस वोल्टमीटर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन. आफ्टर दैट देयर विल बी अ वेरिएबल. कितने कही थे हमने, 4 वायर्स कही थी, 4 बैटरीज, एंड देयर इज एन अमीटर, एंड विद दैट अमीटर देयर इज अ प्लग सी. राइट, देयर इज नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ेगा. और जैसे यहाँ नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, तो ये आपका नेगेटिव होगा और ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा. द करंट विल बी फ्लोन फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड फ्रॉम दिस टू दिस, एंड फ्रॉम, right? Current will be flown like this. So what is that? This is the circuit. Before that, to show that we will connect this by, इसको ऐसे जोड़ देते हैं so that it is easy to explain. तो पहले हमारी ये कितनी वोल्टेज है, 4 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट है, ये 1.5 है, ये 1.5 है और ये 1.5. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके करती हूँ. तो पहले मैंने ज्वाइन किया यहाँ से. तो पहले में मैंने क्या लिया है कि आपकी जो वोल्टेज है, एक सेल ज्वाइन किया है, यानी द वोल्टेज गिवन टू द सर्किट इज 1.5 वोल्ट. बी रिमेंबर, हम यहाँ पे बार बार क्या चेंज करेंगे, वोल्टेज चेंज करेंगे. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे बिटवीन द टू टर्मिनल्स, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ द करंट विल बी फ्लोन थ्रू द सर्किट, वी हैव टू सी दैट. कि इज दैट इंक्रीजिंग और इज दैट डिक्रीजिंग, or what is the value and what type of the graph it will be shown by the potential difference and the electric current. तो पहले मैंने कितना ज्वाइन किया, आपका यहाँ पे ज्वाइन किया है आपका 1.5 वोल्ट का. राइट, जब मैंने इसको 1.5 वोल्ट किया, and you have to remember that the temperature will remain always constant. Temperature remains constant. टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रखना है. यू विल नॉट कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, देयर विल बी चेंज इन द करंट विल टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग ऑफ द वायरिंग और एक्सेट्रा. तो पहले आपने कितना रखा, 1.5 वोल्ट रखा. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स इज योर 1.5, एंड यू हैव टू चेक द मीटर. तो यू हैव टू मेक अ टेबल. यहाँ पे सीरियल नंबर, हाँ करण, यस खुशी गर्ग, खुशी, हाँ बोलो बेटा. हाँ मैं दोबारा बता देती हूँ. इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन अगेन. ओके, लिसन, म्यूट कर लो बेटा अपने आप को. ठीक है, मैं बताती हूँ. इफ देयर इज एनी डाउट देन अगेन रेज योर हैंड. देखो बेटा, मैंने क्या कहा है कि हमें रिलेशनशिप बतानी है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है और जो हमने करंट पढ़ा है, कि उसके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है. तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमने एक एक्टिविटी कर रहे हैं. उस एक्टिविटी में मुझे 4 तो सेल चाहिए, 1.5 वोल्ट ईच के चाहिए, मुझे एक अमीटर चाहिए, मुझे एक वोल्टामीटर चाहिए, मुझे एक निक्रोम की वायर चाहिए. जो मैंने निक्रोम की वायर बोली थी, किसकी बनी होता है, निकल की, क्रोमियम की, मैंगनीज की और आयरन की, जिसमें निकल और क्रोमियम लार्जर क्वांटिटीज में होंगे, और जबकि आपके वो कौन, आयरन और जो मैंगनीज है दैट विल बी प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी. यहाँ पे मैंने एक चीज यूज की है और एक कनेक्टिंग वायर यूज की है, सो दैट द करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट. करंट इसमें से फ्लो कर जाए. तो इस हिसाब से जोड़ना है. जब भी मैंने आपको करंट का बताया था कि अमीटर इज यूज टू आइडेंटिफाई द हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज देयर, तो उस टाइम में हमेशा याद रखना कि जो अमीटर है दैट विल बी ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज टू चेक द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट.
कि सर्किट के पूरे सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो तभी पता चलेगा जब हम अमीटर को किसके अंदर जोड़ेंगे, सीरीज के अंदर जोड़ेंगे। और जो वोल्टामीटर है वो दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस बताता है कि मैंने यहाँ पे कहीं भी बल्ब लगा दिया या कहीं भी मैंने हीटर लगा दिया या कहीं भी टोस्टर लगा दिया, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा कैसे कैलकुलेट होगा, जब हम उसको किस में जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने वोल्टामीटर जोड़ा है और आपका इसमें क्या जोड़ा है, मैंने अमीटर को सीरीज में जोड़ा है। और यू हैव टू चेक दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अमीटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सेम विद योर वोल्टामीटर। कि यहाँ से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से जोड़ना है, इधर से नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ जोड़ना है। तो इस तरह से मैंने सर्किट को बनाया है। सबसे पहले मैं इसमें क्या चेंज करूंगी, वोल्टेज चेंज करूंगी। बाकी तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस है जिसके अंदर से करंट फ्लो करा है कि वो कुछ अमाउंट ऑफ करंट को रोकता है या नहीं रोकता है। तो उस केस में मैंने क्या किया, वो एक कांस्टेंट रख लिया। तो जब मैंने उसको कांस्टेंट रखा तो मैं उसके बीच में रिलेशनशिप कैसे निकाल लूंगी, बाय चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कब चेंज होगा, जब मैं जो वोल्टेज दे रही हूँ उसको बैटरीज कनेक्ट किया उसके साथ, उसको वन बाय वन करके क्या करूँ उसके साथ कनेक्ट करूँ। कि पहले मैंने वन सेल कनेक्ट किया, फिर मैंने दूसरा सेल कनेक्ट किया, फिर मैंने तीसरा सेल कनेक्ट किया, फिर मैंने चौथा सेल कनेक्ट किया। तो मेरे पास कितने सेल है, 4 सेल है। हाँ यस सेजल, यस सेजल, हाँ बोलो आराम से। हाँ बेटा सबसे मिनिमम 1.5 वोल्ट का ही आता है। ये आप घरों में बैटरी में सेल यूज करते हो ना, जो रिमोट्स में, टीवीज में, वो सारे 1.5 वोल्ट ही होता है। तो मिनिमम 1.5 वोल्ट ही आता है। आप 2 वोल्ट का ले सकते हो। जस्ट अ सेकंड बेटा। हाँ 1.5 वोल्ट अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पे 1.5 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कितने भी ले सकते हो, पर मिनिमम 1.5 वोल्ट का आता है। ठीक है, तो मैंने 1.5 वोल्ट का लिया और इसके अंदर से, हाँ यस मयंक, ठीक है चलिए म्यूट करो अपने आप को। यस मयंक बोलो। हाँ बोलो बेटा। इसका काम है टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ द करंट, कि ये कितना करंट को रोक सकता है वो चेक करने के लिए। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, एक बात तो हम यहाँ पे सिंपल वायर लगा सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज को सेम करके हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कांस्टेंट रख दो और निक्रोम वायर को की जगह हम सिंपल वायर लगा दे, जो हम अपना सिंपली यूज करते हैं। मैंने क्लासेस में भी सर्किट दिखा रखा आपको, राइट। तो उससे देख लो कि कितना करंट आ रहा है और फिर आप उसमें निक्रोम वायर लगाओ तो उससे चेंज करके देखो। तो आप देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। यहाँ पे हम निक्रोम वायर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है और ये आपका इजी फ्लो कर देता है करंट, राइट। हाँ, is there a disturbance in the, someone is unmuted also? Yes, तो आपको क्या करना है, पहले आपके कितने सारे 1 2 3 4, तो मैंने 1 2 3 4 कर दिया। तो उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स कह सकते हैं कितने अटैच है, 1 2 3 4। पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.25 3 4.5 एंड 6.0। I हमें पता नहीं है कितना आएगा और बाद में हम निकालेंगे V अपॉन में I, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले मैंने कितना कनेक्ट किया, एक सेल कनेक्ट किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा V कितना आ गया, 1.5 वोल्ट। तो उस टाइम करंट चेक कर लो आपका कितना करंट आ रहा है, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से दूसरा सेल कनेक्ट किया तो मेरा टोटल कितना हो गया, 3 वोल्ट, अंडरस्टैंड। दूसरे टाइम में मैंने क्या किया, 3 वोल्ट कर दिया और चेक द करंट फ्रॉम दैट। जैसे ये I1 है, ये आपका I2 हो गया। उसके बाद आपने फिर अगेन रिपीट करना है इस एक्टिविटी को, तीसरा सेल इसके साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है और ये आपका टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 4.5 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, I3। और लास्ट में आप यहाँ से कनेक्ट करोगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, प्लस 1.5 करेंगे तो 6 वोल्ट हो जाएगा और उस टाइम पे कितना हो जाएगा, I4। तो V अपॉन में I आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो V अपॉन I आपका बार बार कैलकुलेट करोगे, यानी 1.5 डिवाइडेड बाय I1, 3.0 डिवाइडेड बाय I2, 1.5 ढंग से लगा देते हैं,
यहाँ 4.5 divided by I3 और 6.0 divided by I4. So when you will draw the graph between the V and the I, so we have to show the relationship between the V and the I. So what is the relationship between V and I? So if we are going to make V on the x-axis and I on the I on the x-axis and V on the y-axis, that will be in your volts potential difference and that will be in your ampere. ये किसके अंदर होगा? आपका एम्पियर के अंदर होगा. And when you are going to draw the graph between the V and I, और ये इस वैल्यू को पुट करो या ये ऐसे करो, it will come out to be a straight line. What does it mean? आप देखोगे कि हर बार जब आपका 1.5 अपॉन में I1 था, उस टाइम जो वैल्यू आई, मान लो मैं ये कहूँ आपकी कि ये 0.5 आई है, तो जब इसके टाइम में कैलकुलेट करिए अभी नियरली 0.5 आएगी या 0.49 कुछ ऐसे आ गई या 0.48 आ गई या 0.51 आ गई, तो इट विल बी नियरली सेम टू ईच अदर and it will show a straight line. So what is the meaning of straight line in the potential difference and the current diagram? It shows that as the potential difference increases, the current in the electric circuit will also increases as the temperature remains constant. What does it mean? If we keep the temperature constant, then the potential difference will be increased, then the current will also increase. So from this relationship, we can say that V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. What does it mean? V is upon में I is equal to constant. We can say that. तो V upon में I क्या हो जाएगा? आपका constant हो जाएगा. That constant will be denoted by the R. इस constant को हम किससे denote कर रहे हैं? R से. तो V upon में I is equal to R and that R is the resistance present in the electric circuit. Understand? तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंट है, वो कैसे डिनोट किया गया? R से. And it was first explained by the scientist, that will be German physicist George Siemens Ohm. George Siemens Ohm, उसने इसको क्या किया था? एक्सप्लेन किया था. And this law is called your Ohm's law. इसको क्या नाम दिया गया? Ohm's law नाम दिया गया. According to that, at the constant temperature, the potential difference is directly proportional to the current. As the potential difference increases, the current in the circuit will also increases. So we can say that it is the property of a conductor. अब ये resistance है जो मैंने R बोला है, R is equal to resistance. So what is resistance? It is the property of conductor. किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज. तो किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो आपका रेजिस्ट करे किसको? चार्ज को फ्लो करने से, दैट विल बी नोन एज योर रेजिस्टेंस. अभी मैंने क्या बताया? V इज इक्वल टू आई अपॉन में V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं. इसको मैं रब कर रही हूँ. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट पूछ लो इसको, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रब दिस. जस्ट रेज योर हैंड. यस मयंक बताइए. नहीं, रेजिस्टेंस तो आपको अलग से करनी पड़ेगी. अभी उसको मैं बताऊंगी रेजिस्टेंस क्या होता है. मैंने सिर्फ इतना ये बताया अभी कि इसके अंदर जो V अपॉन में I वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट होता है. और कांस्टेंट कब है? जब मैंने यहाँ पे इसको क्या रखा गया? कांस्टेंट रखा है. किसको? रेजिस्टेंस को, जो आपके रेजिस्ट करे किसको? फ्लो ऑफ चार्ज को. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या? सिंपली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज.
इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मूव करना, दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक करंट। और उसको जो भी चीज रोक दे उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस बोलेंगे। और वो ज्यादा रोकती है तो उसको इंसुलेटर बोल देंगे, और जो कम रोकती है तो उसको क्या बोल देंगे हम, कंडक्टर बोल देंगे। नहीं तो हर वायर कॉपर की है या उसकी आपकी निक्रोम की वायर है, लॉयल्स की वायर है, कुछ ना कुछ अमाउंट में जो चार्ज या फ्लो को है इलेक्ट्रॉन को उसको रोकती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आपका करंट जरूर उठता है। तो दैट विल बी नोन एज योर रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर मैम? ये तो उसने दिया बेटा, ओम्स ने दिया है। वो उसने जॉर्ज सीमन ओम का जो साइंटिस्ट था, ग्रीक फिजिक्स था, उसने कहा कि V इज इक्वल टू आई, कॉन्स्टेंट आर है। कॉन्स्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ जो निक्रोम वायर रखी है वो कॉन्स्टेंट रखी है, इसलिए उसने उसको क्या नाम दे दिया, आर के नाम से दे दिया। और आर की यूनिट उसने दी ओम्स, जो अभी मैंने डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। अभी थोड़ा और पढ़ो इसको, आपको रेजिस्टेंस समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है? इंसुलेटर बेटा वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा। नहीं, तभी तो वो तो रोक देगा, तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा उसमें से? करंट तो फ्लो नहीं करेगा ना, तो उसको प्रॉपरली इंसुलेटर बोलेंगे। इसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन ही यही है रेजिस्टेंस की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ द करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब जो कितनी रेजिस्टेंस रोकता है उसके बेस पर मेटल्स को आगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। ओके, कंडक्टर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करंट तो उसमें से फ्लो करता ही है। जो इंसुलेटर है वो प्रॉपरली पूरा नहीं होता, हाँ थोड़े से अमाउंट में तो वो करंट को क्या करेगा, फ्लो करेगा। यदि वो हल्का सा भी करंट फ्लो करता है तो दैट विल बी नोन एज योर कंडक्टर। जस्ट म्यूट योर सेल्फ बेटा, आफ्टर दैट आई एम स्टार्टिंग डिस्कसिंग अगेन लेटर। आफ्टर दैट वी आर डिस्कस दैट कि V इज इक्वल टू आई आर। हमने यही कहा कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V is directly proportional to I, and we can say that V is equal to I R. If we have to calculate the R, तो V upon में I. Understand? यही आएगा। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द करंट, मीन्स R is inversely proportional to current। या कह सकते हैं I is inversely proportional to resistance। दोनों बात सेम है, ये सुनो सेम है। तो इसका मतलब क्या है? इफ रेजिस्टेंस इज डबल, यदि रेजिस्टेंस को मैं डबल कर दूं, करंट विल बी हाफ। करंट क्या हो जाएगा? हाफ दो, राइट? यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। तो जब आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब है करंट कम होगा, तो दैट विल बी योर इंसुलेटर। और यदि आपका रेजिस्टेंस कम है, करंट ज्यादा, तो दैट विल बी नोन एज योर कंडक्टर। जो कंडक्टर और इंसुलेटर वर्ड यूज करते हैं वो हम लोअर क्लासेस में यूज करते हैं। नाउ वी आर यूजिंग द वर्ड गुड कंडक्टर एंड द पुअर कंडक्टर। तो V इज इक्वल टू आई, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V अपॉन में आई। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यदि मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाती जाऊंगी तो मेरा करंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और यदि मैं करंट रेजिस्टेंस को कम करती जाऊंगी तो करंट मेरा क्या होता जाएगा? बढ़ता रहेगा। और वही द यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इस सिंबल से हम क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। किसको? ओम को। किसने दिया था? ये जॉर्ज सीमन ओम्स ने दिया था, अपने नाम से इसने उसकी यूनिट दे दी रेजिस्टेंस की, एंड दैट इज नोन एज योर ओम। एंड व्हेन इट इज इक्वल टू 1 ओम, व्हेन देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द टू टर्मिनल्स। यानी एक टर्न पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये A पॉइंट है आपका, ये B पॉइंट है। इसके बीच में यदि मैंने वोल्टेज लगाया है, वोल्टामीटर लगाया, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट, और 1 एम्पियर का इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, देन इट विल बी इक्वल टू 1 ओम। So the resistance of a conductor will be equal to 1 ohm when the 1 volt voltage of potential difference 1 volt and current will be flown through the circuit is equal to 1 ampere. Then we will say that
resistance is equal to 1 ohm. Understand? After that we have discussed that कि हमें कई बार वेरिएबल करंट की जरूरत पड़ती है, वी आर नॉट एबल टू चेंज द वोल्टेज अगेन एंड अगेन। अब लिसन, हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट की आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते। अब जब हम उसको चेंज नहीं कर सकते और हमें करंट को चेंज करना है, तो व्हाट वी विल डू एट दैट टाइम, वी विल चेंज द रेजिस्टेंस। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, एंड दैट इज नोन एज योर वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब ये क्या है कि बाय कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सेम एंड वी हैव टू चेंज द करंट, वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस, एंड देयर इज अ device which is generally used to change the resistance, and that is known as rheostat. Rheostat क्या होता है, एक टाइप का आपका डिवाइस होता है, ऐसे इस टाइप का आपका एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसके अंदर यहाँ पे आपके लिखे होते हैं, यहाँ पे आपकी कीज टाइप से होती है, वुडन का बना हुआ होता है। यहाँ पे एक टर्मिनल होता है, यहाँ एक टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल है आपका, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, जिससे आप उसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर दें। यानी यहाँ पे 1 ओम लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 10 ओम लिखा हुआ है, यहाँ 15 लिखा है। ऐसे आपके उसके ऊपर क्या लिखे होते हैं, वैल्यू लिखी होती है, 50 ओम, 100, 200 एक्सेट्रा। इस टाइप से आपकी क्या लिखी होगी, उसके ऊपर वैल्यूज लिखी होगी। आप मान लो ये वाले प्लग निकाल दो, तो जो सर्किट के अंदर से जो रेजिस्टेंस होगा वो कितने का हो जाएगा, 1 ओम का हो जाएगा। ये निकालोगे तो 2 का हो जाएगा, ये दोनों निकालोगे तो 3 ओम का हो जाएगा। तो यू कैन चेंज द रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अ डिवाइस इन द सर्किट, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज योर रियोस्टैट। उस डिवाइस को यूज करने की वजह से, जब रियोस्टैट यूज करते हैं, आप पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रख सकते हो, और आप किसको चेंज कर सकते हो, करंट को चेंज कर सकते हो। कि वी तो आपने मान लो 220 वोल्ट रख दिया, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो कर रहा है, अब वो तो हमेशा कांस्टेंट हो गया, तो आप किसको चेंज करोगे, रेजिस्टेंस को चेंज करोगे। जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा, आपका करंट भी क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा, एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन अनदर एक्टिविटी, जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बताना। अभी स्टार्ट करूंगी तो शायद नहीं कंप्लीट होगी, एंड 2 एक्टिविटी बतानी है, दोनों एक्टिविटी मैं आपको कल बताऊंगी। यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दैट, आस्क मी, और अदरवाइज आई एम गोइंग टू कैंसल एंड द मीटिंग।